Welcome to Forward Public School e-learning class 10 subject maths unit 6 basic statistics exercise 6.3 page 152 part 2. I'm your teacher Noreen Amin. Page 140 topic median for continuous data. For computing median in continuous data, it is important to make class boundaries and then median is calculated by using the formula. Median equals to L plus H divided by F into N by 2 minus C, where L क्या है? Lower limit of median class, H width means class interval of median class, F frequency of median class, N by 2 means F क्या है? Frequency of median class, N by 2 हमारे पास क्या है? Summation F by 2, क्योंकि हमारे पास continuous data है तो इसमें हमारे पास frequency होगी. C क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास. अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो मीन्स क्लास लिमिट आ जाए तो उसके लिए हम क्या मीडियन किस तरह फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए और फिर हम क्या फाइंड करेंगे? मीडियन बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला. पेज 141 टॉपिक मोड थर्ड टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. डेफिनेशन. The value that appears more times in a data is called mode for the given data, or the most frequent value in a data is called mode. स्टूडेंट्स, मोड होता क्या है कि आपके पास डेटा में वो वैल्यू जो फ्रीक्वेंटली अकर हुई हो, मीन्स वो वैल्यू जो बार बार रिपीटेड हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? वो वैल्यू हमारे पास फिर मोड हो जाएगी. डिस्क्रीट डेटा के लिए हम मोड किस तरह फाइंड करेंगे? इस एग्जांपल में हम चेक करेंगे. एग्जांपल नंबर 18 में फॉर द फॉलोइंग साइज ऑफ किड ट्राउजर्स फाइंड द मॉडल साइज. हमारे पास अब कौन सा डेटा गिवन है? हमारे पास डिस्क्रीट डेटा गिवन है. सो डिस्क्रीट डेटा के लिए हम मोड किस तरह फाइंड करेंगे? हम चेक करेंगे डेटा में कि वो वैल्यू जो हमारे पास बार बार अकर हुई हो या रिपीटेड हो. सो अगर इस डेटा में हम चेक करें 25 एंड 25, सो 25 हमारे पास फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है. सो in the above data 25 is the most frequent value, so the model size is 25. इस डेटा में 25 रिपीटेड हुआ है, so मोड हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका 25 हो जाएगा. पेज 142 स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पढ़ा कि डिस्क्रीट डेटा के लिए हम मोड किस तरह फाइंड करेंगे. नाउ कंटिन्यूस डेटा के लिए हाउ वी कैन फाइंड मोड. सो वी विल यूज फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू L प्लस Fm minus F naught divided by 2Fm minus F naught minus F1 into H. Now where L equals to lower limit of the model group, Fm frequency of the model group, F naught frequency of the group preceding the model group, F1 frequency of the group following the model group, H class interval. So, अगर हमारे पास continuous data हो तो उसके लिए हम mode find करेंगे by using this formula. Page 143 topic geometric mean fourth type of central tendency. Geometric mean definition. Geometric mean is the nth positive root of product of n values. Geometric mean for ungrouped data. If x1, x2, x3 up to xn are n values in a data, the geometric mean is given as geometric mean equals to x1 multiply x2 multiply x3 multiply up to xn whole power 1 by n, और geometric mean equals to anti-log into summation log x divided by log n. अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा आ जाए तो इसके लिए हम अनग्रुप डेटा आ जाए तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग इनटू समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन. ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा मीन्स अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाए, let x1, x2, x3 up to xn be the midpoints in a frequency distribution and f1, f2, f3 up to fn are their respective frequencies. Then the geometric mean is calculated by using the formula. So geometric mean equals to anti-log into summation f log x divided by summation f. अगर ग्रुप डेटा आ जाए तो इसके लिए हम geometric mean किससे फाइंड करेंगे? by using this one formula. Page 145 topic harmonic mean HM. Definition: it is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal values. Harmonic mean for ungrouped data. Let
there be n values, that is x1, x2, x3 up to xn in a data, then the harmonic mean hm is calculated by following formula. Harmonic mean equals to n divided by 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus up to so on plus 1 by xn के मीन्स हम इन वैल्यूज़ का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इस तरह इक्वल्स टू, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। n क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो होंगे, और x वेरिएबल अगर हो तो उसको हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल 1 बाय x फॉर्म में लिखेंगे। Page 146, harmonic mean for group data. The harmonic mean of group data is computed by following formula. Harmonic mean equals to summation f divided by summation f by x. अगर ग्रुप डेटा आ जाए तो इसके लिए हम हार्मोनिक मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, फाइंड द अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब हमने इस डिस्क्रीट डेटा के लिए अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। सो वन बाय वन हम एक एक फाइंड करते जाएंगे। सोल्यूशन टू फाइंड अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा। सो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे दिस अनग्रुप डेटा के लिए बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बाय शॉर्टकट मेथड से बता रही हूँ कि किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे अर्थमेटिक मीन। सो शॉर्टकट मेथड मीन एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन वो हमारे पास क्या है कि इसमें हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं खुद से। सो डेटा को अगर हम चेक करें तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसमें हम कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे। हमने क्या किया, एज्यूम इसमें 67 को एज्यूम किया है। एक्स हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम फर्स्ट ये डेटा लिख देंगे, एक्स की वैल्यू सारी लिख देंगे। इसके बाद डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए। एक्स की वैल्यू से हम ये एज्यूम मीन माइनस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 58 माइनस 67, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 9 आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर से करें सो सेकंड क्या है, 59 से हम माइनस करेंगे एज्यूम मीन। सो 59 माइनस 67, सो क्या आ जाएगा -8। और इसी तरह हम रिमेनिंग एक्स की वैल्यू से क्या माइनस करेंगे, एज्यूम मीन्स हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डी एक्स फाइंड करने के बाद हम इसका क्या फाइंड करेंगे, समेशन फाइंड करेंगे। सो हम डी एक्स को प्लस करेंगे, -9 -9 -8 -7 -5 -3 ये भी हमारे पास डी एक्स है। सो -2 0 एंड 0 है, 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम जस्ट नंबर्स को करेंगे 1 + 3 + 4, नाउ 4 + 4 + 6। सो हमारे पास समेशन डी एक्स क्या आ जाएगा, -15, और टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारे पास क्या है, 15 है। सो एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 15। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई n। a हमारे पास जो एज्यूम किया है हमने वो क्या है 67 प्लस समेशन डी एक्स हमारे पास क्या आया है -15 डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या है 15। सो 15 डिवाइडेड बाय 15 1 आ जाएगा, प्लस माइनस इज -1, तो 67 - 1 इज 66। सो अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और नोटेड दैट वी कैन अप्लाई डायरेक्ट मेथड टू फाइंड arithmetic mean, that is by using x bar equals to summation x by n। so means आप शॉर्टकट मेथड के बजाय आप डायरेक्ट मेथड से भी arithmetic mean फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा। अब सेकंड हम क्या फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए, log x चाहिए। सो फर्स्ट हम x की तमाम वैल्यूज लिख देंगे जो हमारे पास क्या है 15 आइटम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक x की वैल्यू के लिए हम log फाइंड करेंगे। सो कैलकुलेटर के थ्रू हम लॉग फाइंड करेंगे। किस तरह, लॉग फर्स्ट हमारे पास क्या है 58, सो लॉग 58 क्या आ जाएगा हमारे पास 1.67634। हम जस्ट डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लेंगे।
इसी तरह सेकंड के लिए हम क्या किस तरह फाइंड करेंगे 59 के लिए। सो लॉग 59 इक्वल्स टू, सो क्या आ जाएगा 1.770। अब देखिए यहाँ पर 8 और 5 है, सो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9। सो 1.7709। और इस तरह हम रिमेनिंग x की वैल्यूज़ के लिए भी क्या फाइंड कर देंगे, इसका लॉग फाइंड करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, समेशन लॉग x, मीन्स इन लॉग्स की तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27.2771 आ जाएगा। नाउ यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी-लॉग इनटू लॉग समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। समेशन लॉग x की जगह हम 27.2771 पुट कर देंगे और n हमारे पास क्या है 15 है। नाउ अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 27.2771 डिवाइडेड बाय 15, तो इससे आंसर आ जाएगा 1.8184। 7 है तो 7 है तो हम इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5, सो 1.8185 आ जाएगा। नाउ वी विल फाइंड एंटी-लॉग। अब एंटी-लॉग फाइंड किस तरह फाइंड करेंगे, एंटी-लॉग शिफ्ट इनटू लॉग, सो 1.8185, सो एंटी-लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 65.8, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 66। सो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। टू फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा, अब हम फाइंड क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। सिंस द गिवन डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, एस एन इज 15 ऑड नंबर है। सो मीडियन के लिए जो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला है वो क्या है, मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम्स। सो n की जगह क्या आ जाएगा 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, सो 15 + 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 18, 8। सो साइज ऑफ 8 आइटम्स। अब हम इस पर चेक करें कि हमारे पास 8 आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 आइटम दिस वन है, सो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। नाउ टू फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा, अब लास्ट पे हम क्या फाइंड करेंगे, इसका मोड फाइंड करेंगे। और मोड आपको पता है कि क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकर इन द डेटा। सो डेटा हमारे पास ये है, we observe that in the given data 71 appears 3 times, so it has the highest or maximum occurrence in this data, so by the definition the mode of this data is 71, so mode हमारे पास क्या हो जाएगा 71, because 71 हमारे पास 3 times repeated हुआ है, occurred हुआ है, so mode क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। and this is the end of question number 6. Question number 7, a set of data contains the values as data हमारे पास given है, show that mode is greater than median is greater than mean। फर्स्ट इस डेटा के लिए हम क्या करेंगे, इस अनग्रुप डेटा के लिए हम मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि मोड का आंसर ग्रेटर आएगा मीडियन से और मीडियन का ग्रेटर आएगा मीन से। सो सोल्यूशन अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन, अनग्रुप डेटा है, सो इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। द डेटा कंटेन्स द वैल्यू, सो हमारे पास x की वैल्यू ये है और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास क्या है, x बार इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। कौन सा है, डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला ये है। सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इस x को सम करेंगे, मीन्स इसका समेशन फाइंड करेंगे। x की तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160, सो समेशन x हमारे पास क्या आ जाएगा 926। और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास n कितना है कि हमारे पास ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सो n हमारे पास क्या हो जाएगा 6। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, सो समेशन x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 926 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 926 को हम डिवाइड करेंगे किस पर 6 पर, सो आंसर क्या आ जाएगा 154.33 समथिंग, सो हमारे पास वो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 154, सो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। नाउ फाइंडिंग द मीडियन, मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सो राइटिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को लिखेंगे
एन हमारे पास क्या है 6 है विच इज़ इवन नंबर। सो मीडियन के लिए हम जो इवन नंबर अगर हमारे पास एन आ जाए सो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइज ऑफ एन बाई 2th आइटम प्लस साइज ऑफ एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। सो 1/2 अपनी जगह पर, साइज ऑफ एन हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 टर्म्स हो जाएगा, प्लस साइज ऑफ एन की जगह 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा थर्ड, सो साइज ऑफ थर्ड टर्म प्लस 6 प्लस 2 इज़ 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, सो साइज ऑफ फोर्थ टर्म। सो अब इसमें चेक करेंगे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ टर्म कौन सा है 1 2 3, सो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 156, सो इसी जगह हम 156 लिख देंगे, प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम, सो 1 2 3 फोर्थ हमारे पास क्या है 157 है, सो ये लिख देंगे। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 313 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 2, सो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा 156.5 हो जाएगा। मोड के लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम द अरेंज डेटा, अब इसी अरेंज डेटा में हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू अकड़ हुई। देखिए 160 हमारे पास क्या है 2 टाइम्स आया है, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा। सो मोड हमारे पास क्या होगा, मोड इक्वल्स टू 160। 160 appears 2 times in the data, which is the maximum appearance or the most frequent value that occurs in the data. So the mode of the data is 160. Mode equals to 60. Hence, mode हमारे पास क्या आया है 160 आया है, मीडियन हमारे पास क्या आया था 156.5 और मीन हमारे पास क्या आया था 154.3। सो 160 हमारे पास ग्रेटर है 156.5 से और 156.5 ग्रेटर है 154.5 से। सो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, सो हमारे पास प्रूफ होगा ये, एंड दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7. This is the end of exercise 6.3 part 2. Remaining question of this exercise will be solved in next part. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.